اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سیٹیٹ کا پہلا کلاس زبان کی آموزش اور اکتساب و حصولیابی کے تعلق سے کچھ سیکھیں گے، کچھ دیکھیں گے اور کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں زبان کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو آئیے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں بھائی، زبان انسان کے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے۔ زبان کیا ہے کہ انسان کے جو خیالات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو جذبات ہیں، ایک دوسرے تک پہنچانے کا کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے یہ زبان۔ اب دیکھیں، زبان سماجی تعاملات، سوشل انٹریکشن کا نتیجہ ہے۔ یعنی زبان کیا ہے؟ ایک دوسرے سے مل جل کا ایک نتیجہ ہے، سماجی مل جل کا ایک نتیجہ زبان ہے۔ اب دیکھیں، سماجی تعاملات کی وجہ سے ہی بچہ نقل کے ذریعہ زبان سیکھتا اور حاصل کرتا ہے۔ اب بچہ کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، اس دیکھنے سے، اس کے مل جل کے وجہ سے ہی بچہ کیا کرتا ہے؟ زبان سیکھ لیتا ہے۔ یعنی گھر میں کسی کو، ماں باپ کو دیکھا، ان سے سنتے ہوئے دیکھا، سن لیا تو اس سے بھی سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح گھر کے باہر نکلا، ارد گرد میں لوگ بولتے رہتے ہیں، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بچہ نقل کے ذریعے زبان سیکھ لیتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں اب، زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے۔ زبان کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ علم لسانیات، یعنی بھاشا وگیان۔ غرض یہ کہ زبان اور سماج کے مابین ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جس کے بغیر نہ تو زبان کی ترقی ممکن ہے اور نہ سماج کی ترقی۔ بالکل صحیح کہا جا رہا ہے کہ زبان اور سماج کے مابین ایک ایسا رشتہ ہے جس کے بغیر نہ تو زبان کی ترقی ہو سکتی ہے اور نہ ہی سماج کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر سماج میں ہم زبان کا استعمال نہیں کریں تو سماج ڈیولپ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سماج میں اگر ہم زبان کا استعمال نہیں کریں تو زبان ڈیولپ نہیں کرے گا۔ تو دونوں کا ایک دوسرے سے مضبوط رشتہ ہے۔ سماج میں رہتے ہیں تو ہمیں زبان کا بھی استعمال کرنا پڑے گا اور سماج میں زبان استعمال کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے حصے میں؟ زبان کو کتنے حصے میں تقسیم کیا گیا بتائیں آپ لوگ؟ ہاں، 3 حصوں میں۔ پہلا کیا ہے؟ اشاروں کی زبان۔ دوسرا کیا ہے؟ آوازوں کی زبان۔ اور تیسرا کیا ہے؟ علامتوں کی زبان۔ یہ انگلش ورڈ جو ہے، اسپوکن لینگویج وغیرہ جو بھی ہے، سمبولک لینگویج، یہ سب سارے چیز آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ میں صرف اردو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، پہلا کیا ہے؟ اشاروں کی زبان، سنگ لینگویج۔ ٹھیک ہے، جب ہم ہاتھ، پاؤں، سر یا آنکھ اور چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنے خیالات اور جذبات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ اشارات کی زبان کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہلاتی ہے؟ یہ اشارات کی زبان کہلاتی ہے۔ یعنی ہم جب اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنے جذبات کا، احساسات کا استعمال دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اشاروں کی زبان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم راستے میں چل رہے ہیں، کوئی بھائی میرا مل گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو میری آواز تو وہ سن نہیں پاتا ہے، لیکن ہمارے جو اشارے ہیں اس سے وہ سمجھ پاتا ہے کہ اس نے سلام کیا ہے۔ اب دیکھیں، ذو لسانی اور کثیر لسانی ماحول میں اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی زبان، دوسری زبان اور کثیر زبان میں کیا ہوتا ہے کہ ماحول میں اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ اب دیکھیں آگے، آوازوں کی زبان، دوسرا کیا ہے؟
आवाज़ों की ज़बान है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ों को सुनकर उसका माना समझता है और सीखता है। ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है, ठीक है, इक्वाइजेशन प्रोसेस। मतलब क्या कहा जा रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ को सुनता है और समझता है और फिर सीखता है। जब एक इंसान दूसरे की आवाज़ सुन पाएगा और उसके माना को समझ लेगा, तभी तो वह उससे अपनी बात को कह सकता है। तो ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने गिरदोपेश में जिन लोगों से साबका पड़ता है, क्या है, बच्चे का अपने गिरदोपेश में जिन लोगों से साबका पड़ता है वह कोई ना कोई तो ज़बान बोलते हैं। बच्चा उन्हीं आवाज़ों की नकल करके आवाज़ों को दोहराकर ज़बान सीखता है। यानी जब बच्चा एक दूसरे से मिलजुल रखता है, जब बच्चा एक दूसरे को देखता है, उसकी ज़बान को सुनता है, तो उसी ज़बान को सुनते सुनते वो क्या करता है, वो सीख लेता है और दोहराने लगता है और उसकी आवाज़ को नकल करके बोलने लगता है। और क्या भाई, और है कि धीरे धीरे इस पर महारत भी हासिल कर लेता है। यानी बच्चा जब किसी की बात को सुनता है, फिर वो क्या करता है, उसकी नकल करने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है, वो धीरे धीरे बोलते बोलते उसकी आवाज़ क्या करती है, उसकी बात को सुनकर वो क्या करता है, उसमें महारत हासिल कर लेता है। एक 3-4 साल का बच्चा अपनी ज़बान के बुनियादी उसूलों से वाकफियत रखता है और सही ज़बान बोलता है। यानी एक 3-4 साल का बच्चा क्या करता है, अपने आस पड़ोस, अपने घर वाले की ज़बान को सुनते सुनते, बातों को सुनते सुनते वह क्या करता है, उसकी नकल करते करते धीरे धीरे बोलना भी सीख जाता है और उस पर महारत भी हासिल कर लेता है। और एक 3-4 साल का बच्चा क्या करता है, ज़बान के बहुत सारे ज़बान के बुनियादी उसूलों से वाकफियत रखता है। यानी वो आगे चल के 3-4 साल के बच्चे में ये कुव्वत पैदा हो जाती है, ये ज़बान उसके अंदर आ जाती है कि वो सही ज़बान बोलने लगता है। ठीक है, अब देखें तीसरा क्या है, अलामतों की ज़बान। अलामतों की ज़बान क्या है भाई, जब किसी आवाज़ को मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है तो वह तहरीर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब किसी मखसूस आवाज़ को किसी मखसूस अलामत के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है तो वह क्या हो जाता है, तहरीर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यानी हम कोई बात किसी से सुनते हैं और जब उसको लिखते हैं तो वह क्या हो जाती है, एक तहरीर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तहरीरी शक्ल ज़बान की एक मुस्तकिल शक्ल है। बिल्कुल सही बात है कि तहरीरी शक्ल क्या है, एक लिखावट क्या है, एक ज़बान की एक मुस्तकिल शक्ल है जिसके ज़रिए बहुत सारी तहरीरों को पढ़कर हम बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब तक उन अलामात को पुकारा ना जाए ये बेजान है। इस तरह तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बगैर अधूरी है। बिल्कुल सही है कि जब तक उन अलामात को पुकारा ना जाए, हम किसी की बात को सुनकर हम तहरीर तो कर लेते हैं, अलामत तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम बोलेंगे नहीं, तो फिर वह तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बगैर क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। जब हम बोलेंगे ही नहीं तो उस तहरीर को समझेगा कौन, उसको सुनेगा कौन। तो इस तरह जो अलामतों की ज़बान है वो आवाज़ों के बगैर अधूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास में शामिल हो जाएं। चलिए देखिए और मेहनत से पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं, बोली और ज़बान। बोली और ज़बान किसको कहते हैं? अब देखें, दर हकीकत बोली और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं। क्या भाई? बोली और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि बोली ज़बान के मुकाबले में एक छोटे इलाके या मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती।
اس کی کوئی منظم شکل اور ضوابط بھی نہیں ہوتے اور اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ بولی میں کیا ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے نہ کوئی اصول ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے گاؤں میں ہیں تو دوسری بولی بولتے ہیں اور دوسرے گاؤں میں چلے جائیں گے تو وہاں دوسری بولی، لیکن اس کا کوئی منظم طور طریقہ، کوئی ضوابط نہیں ہوتا ہے۔ اس بولی میں کیا ہوتا ہے، تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے بہت ساری۔ لیکن دوسری جانب زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے۔ زبان کیا ہے، ایک وسیع تر نظریہ ہے اور زبان کے متعلق اصول و ضوابط ہوتے ہیں، یعنی اس کے تعلق سے گرامر ہوتے ہیں، ہم کو کس طور پر استعمال کرنا ہے۔ ہم اگر کہہ دیں میں آ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جائے گا، کہنا ہوگا ہم آ رہے ہیں۔ تو اس طرح زبان کے لیے اصول و قواعد ہے۔ تم آ رہے ہو، تم آ رہے ہیں، یہ کوئی جملہ ہی نہیں بنا، اس طرح اصول اور قواعد گڑبڑ ہو جائیں گے۔ تو زبان کے لیے ایک اصول اور قاعدہ ہے۔ اب دیکھیں اس کی ایک معیاری تحریر اور زبانی شکل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہر زبان کی ایک لپی ہوتی ہے اور اسی زبان میں، اسی بھاشا میں ہم کیا کرتے ہیں، اس تحریر کو لکھتے ہیں۔ تیلگو زبان ہے تو اسی تیلگو لپی ہی میں لکھتے ہیں، اسی طرح اردو ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، تو ہر زبان کے الگ الگ تحریر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بولا جانے والا حلقہ بھی وسیع تر ہوتا ہے اور عموماً مستقل فطرت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے، اس کا بولا جانے والا حلقہ بھی وسیع تر ہوتا ہے، لیکن اس کے بولنے والے زیادہ لوگ، بہت زیادہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور علم سے آشنا بھی ہوتے ہیں اور علم کا معنی اور مفہوم بھی پتہ ہوتا ہے اور زیادہ اس میں رائج بھی ہے۔ اس کا بولا جانے والا حلقہ بھی وسیع تر ہوتا ہے اور عموماً مستقل فطرت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مستقل فطرت کی ہوتی ہے۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ زبان اور بولی میں عموماً زیادہ فرق نہیں ہے، کوئی بنیادی فرق، لیکن زبان کے کیا ہوتا ہے، کچھ اصول اور قاعدہ ہوتا ہے جس کے تحت بولا جاتا ہے، اور بولی میں نہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے نہ کوئی گرامر ہوتا ہے، اس میں اکثر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر دوسری جگہ چلے جائیں تو وہاں کا بھاشا الگ ہو جائے گا، لیکن زبان جو ہے ہر جگہ ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہے، آگے ہے مادری زبان یعنی مدر ٹنگ۔ اب دیکھیں مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، کنبہ، آس پڑوس میں بولی جانے والی زبان سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی، مادری زبان سے مراد کیا ہے، جو ہمارے گھر میں زبان بولی جا رہی ہے، جو آس پڑوس میں بولی جا رہی ہے، وہی کیا ہو جاتی ہے، مادری زبان ہوتی ہے، مادری۔ اور دیکھیں یہ وہ زبان ہوتی ہے جسے بچہ اپنے گرد و پیش سے فطری طور پر حاصل ہوتا ہے۔ مطلب مادری زبان کو سکھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بچہ فطری طور پر وہ حاصل کر لیتا ہے۔ بچہ اپنے گھر میں والدین سے سنتا ہے تو سن کر وہ بولنا سیکھ جاتا ہے، اپنے آس پڑوس میں لوگوں سے سنتا ہے تو بولنا سیکھ جاتا ہے، بولنے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے باضابطہ کوئی اسکول کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بچہ یہ فطری طور پر اس کو حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکولی تعلیم کے شروعات سے قبل ہی بچہ اپنی مادری زبان کی پیچیدگیوں، باریکیوں اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور مکمل لسانی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے بچہ، اسکولی تعلیم کی شروعات سے پہلے ہی بچہ اپنی مادری زبان میں جو بھی پیچیدگی ہے، مطلب جو بھی سختی ہے، جو بھی ثقالت ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور وہ مادری زبان کو بولنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، اور کئی بار تو بچے اسکول آنے سے قبل ہی ایک سے زیادہ زبانیں بھی بولنا اور سمجھنا سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، ابھی اسکول نہیں آئے لیکن آنے سے پہلے ہی کئی زبانیں بولنے لگتے ہیں اور اس کو سمجھنے بھی لگتے ہیں۔ زبان بچے کے لیے ایک ذخیرہ معلومات کا کام کرتی ہے۔ جب تک زبان سے بچے کو آشنا نہیں ہوگا، جب تک زبان بچے کو معلوم نہیں ہوگا، تب تک اسے ذخیرے الفاظ کہاں سے معلوم پڑیں گے۔ تو اس لیے زبان بچے کے لیے ایک ذخیرے معلومات کا بھی
काम करती है। इस ज़बान के वसीला से बच्चे अपने और दीगर अफराद के तजर्बात को महफूज रखता है। यानी जब बच्चे के अंदर बहुत सारे ज़बान आ जाएंगे तो इस ज़बान के वसीला से बच्चा क्या करता है, एक दूसरे अफराद के क्या करता है, तजर्बात भी महफूज रखता है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरी ज़बान बोलते होंगे, यहाँ पे दूसरी ज़बान बोलते होंगे, तो इन सारी ज़बानों को सुनकर बच्चे क्या करता है, उन तजर्बात को देखने लगता है। ठीक है, अब देखें, जैसे देखें यहाँ पे कहा जा रहा है एक बच्चे की एक से ज़्यादा मादरी ज़बानें भी हो सकती है। अभी जो मैंने बताया एक बच्ची की एक से ज़्यादा मादरी ज़बान भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि घर पर उसकी माँ कोई ज़बान बोलती हो लेकिन बाप कोई दीगर ज़बान बोलता हो, और आसपास उसे कोई तीसरी ज़बान सुनने को मिलती हो। यानी घर में क्या करते हैं, वालिद जो हैं वो अलग कोई ज़बान बोलते हो, माँ जो है कोई और ज़बान बोलती हो, और आस पड़ोस में रहने वाले से कोई और ज़बान सुन लेते हो, तो बच्चे इस 3 ज़बान का ज्ञान उसको हो जाता होगा। तो स्कूल आने से पहले ही बच्चों को क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे ज़बानों का भी ज्ञान हो जाता है। अब देखें, माहिरीन नफ्सियात ज़रिए तालीम खुसूसन प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में ही होने की हिमायत करते हैं। यानी माहिरीन नफ्सियात जितने भी हैं उन लोगों ने क्या कहा है कि खुसूसन प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में ही तालीम होनी चाहिए बच्चे की। ठीक है, मादरी ज़बान को नज़रअंदाज करना या तालीम में उसके ख़ात्मा की कोशिश बच्चा की शख्सियत में मुदाखलत के मानंद है। यानी मादरी ज़बान को अगर कोई नज़रअंदाज करता है तो तालीम में समझिए उसकी ख़ात्मा की कोशिश करता है, और इस तरह बच्चे की शख्सियत में, बच्चे के डेवलप में वो क्या करता है, मुदाखलत करता है, छेड़खानी करता है। ठीक है, यही वो वसीला है जिससे बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत करता है और उसे फितरी तौर पर नशो नुमा के मौके हासिल होते हैं। यानी यही वो वसीला है, यही वो मादरी ज़बान है जिसकी वजह से बच्चा अपनी बाहरी दुनिया को भी अपने साथ मरबूत करता है और उसे फितरी तौर पर नशो नुमा के मौके भी मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल में तदरीस ज़बान से क़ब्ल बच्चे की फितरी लिसानी सलाहियत की शनाख्त की जाए और ज़बान की नशो नुमा उसी सलाहियत की बुनियाद पर हो। क्या कहा जा रहा है कि इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल में ज़बान की तदरीस से पहले क्या है, बच्चे की फितरी सलाहियत की शनाख्त की जाए और ज़बान की नशोनुमा उसी सलाहियत के बुनियाद पर की जाए। यानी बच्चे की फितरी लिसानी सलाहियत में मादरी ज़बान किस हैसियत से, किस तरह वो सीख पाया है, और उसी ज़बान की सलाहियत पर उसको आगे लेकर चला जाए। ये नहीं कि बच्चे अभी स्कूल में दाखिल हुए और उन्हें ज़बान ऐसी बोली जा रही है कि बच्चे की समझ से बाहर हो जा रही है, बल्कि अगर बच्चे मादरी ज़बान बोलते हैं तो बच्चे के साथ टीचर को भी मादरी ज़बान में ही बात करनी है। अब देखें, 1 अप्रैल 2010 से नाफिजुल अमल बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक RTE एक्ट 19 के मुताबिक 2009 के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो बच्चे की इब्तिदाई तालीम उसकी मादरी ज़बान भी होनी चाहिए। क्या है भाई, RTE एक्ट 2009 के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि जहाँ तक मुमकिन हो बच्चे की इब्तिदाई तालीम, प्राइमरी सतह पर जो तालीम है उसको क्या है, पहले मादरी ज़बान में ही होनी है। इसी तरह हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 350A बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक भी देता है। क्या भाई, हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 350A बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक भी देता है। इसी तरह कौमी दरसियात का खाका यानी NCF
में जिस इल्म की तामीरियत की बात कही गई है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात कही है, और मुअल्लिम का किरदार एक मुआविन आमोजिश का माना गया है। यानी इसमें बच्चे की इल्म की तामीरियत की बात की गई है, ठीक है। और इसमें उस्ताद का किरदार क्या है? बिल्कुल एक सहायक के तौर पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो बच्चों का सरदार बन जाए। इसमें मुअल्लिम का किरदार क्या है? एक मुआविन का, एक मददगार का, लर्निंग फैसिलिटेटर, मतलब कि बच्चे का एक मुआविन हो, एक सहायता करने वाला है, ठीक है। अब देखें, ये ख्याल के बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं भी तभी हकीकत बन सकता है जब हम बच्चे को मादरी ज़बान में इजहार और तफक्कुर की आज़ादी दें। क्या भाई? अब देखिए क्या कहा जा रहा है। ये ख्याल के बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं, यानी बच्चे अपने इल्म में डेवलप, अपने इल्म को आगे बढ़ाने में वो खुद मेहनत करते हैं और खुद से उसकी तामीर करते हैं। ये हकीकत उसी वक्त बढ़ सकता है जब हम बच्चे को मादरी ज़बान बोलने की आज़ादी दें। जब बच्चे को हम मादरी ज़बान में बात करने की आज़ादी देंगे तो उनके अंदर सोच और विचार का जो मादा है वो और आगे बढ़ेगा और वो बोलने में बिला झिझक कोई भी बात उस्ताद और टीचर से कह सकेंगे। वरना अगर हम उनको आज़ादी नहीं देंगे तो बच्चे के अंदर डर और खौफ का माहौल बना रहेगा, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने से कतराएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें मादरी ज़बान में बच्चों को बोलने की, सोचने की, बात कहने की आज़ादी दें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखें भाई, म्यारी ज़बान। म्यारी ज़बान, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। म्यारी ज़बान उस ज़बान को कहा जाता है जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों में से एक हो। क्या भाई? म्यारी ज़बान किसको कहते हैं? म्यारी ज़बान कहते हैं जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों में से एक हो। बिल्कुल सही। और अदबी और इक़्तिदार के पस मंज़र में काबिल कबूल भी मानी जाती है। क्या है भाई? मतलब अदबी ताल्लुक़ से भी क्या है, वो काबिल कबूल मानी जाए, और इक़्तिदार के पस मंज़र भी वो काबिल कबूल हो। यानी जो अभी हुकूमत, जिस इक़्तिदार में जो हुकूमत हो, वो हुकूमत भी उस ज़बान को काबिल कबूल माने तब। अब देखें, म्यारी ज़बान का ताल्लुक़ इक़्तिदार से है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी जो तबका बरसर इक़्तिदार होता है उसकी ज़बान की ही कदर व कीमत होती है। यानी जो तबका जो हुकूमत में है उसी की ज़बान की ही कदर व कीमत होती है, ठीक है। यानी जो तबका बरसर इक़्तिदार होता है उसकी ज़बान की ही कदर व कीमत होती है, और वही ज़बान म्यारी ज़बान भी कहलाती है। अब देख लें, जैसे कदीम हिंदुस्तान में बरहमनों की ज़बान संस्कृत म्यारी ज़बान करार पाई। मतलब उस दौर पे बरसर इक़्तिदार कौन थे? बरहमनों की ज़बान थी और वही लोग थे, ठीक है। तो उनकी ज़बान क्या हुई? संस्कृत म्यारी ज़बान करार पाई। उसी तरह अहद उस्ता में अरबी और फ़ारसी, यहाँ पे फ़ारी लिखा गया है, फ़ारसी होगा, ठीक है, फ़ारसी। और बरतानवी दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ी म्यारी ज़बान करार पाई। जब अंग्रेज़ हुकूमत में थे, बरसर इक़्तिदार थे, तो म्यारी ज़बान कौन करार पाई थी? अंग्रेज़ी ज़बान। उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी की बात करें तो उसकी कई बोलियां हैं। अब देखिए, उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी की बात करें तो उसकी कई बोलियां हैं, लेकिन जो खड़ी बोली की शक्ल है वही म्यारी ज़बान के तौर पर राइज है। अभी म्यारी ज़बान कौन है? खड़ी बोली, ठीक है, म्यारी ज़बान के शक्ल में राइज है। चलें आगे देखते हैं। अब देखें,
क्या है भाई? ज़बान की आमोजिश, इक्तिसाब और हुसूलियाबी। ठीक है, लर्निंग एंड एक्वाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। अब कहते किसे हैं, आइए देखते हैं। तजर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को आमोजिश कहा जाता है। ठीक है, तजर्बात की बुनियाद में पर बर्ताव में आने वाले निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली, यानी जो हमारे तजर्बात है उसमें दिन ब दिन तब्दीली आती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आमोजिश कहते हैं। आमोजिश किसके ज़रिए होता है? हम मेहनत करते हैं तब आमोजिश, तब कुछ सीखते हैं। ठीक है, जबकि इक्तिसाब एक फितरी अमल है, ये अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है और बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है। आमोजिश और इक्तिसाब में क्या फ़र्क हुआ कि आमोजिश के लिए हम लोग क्या है, ज़बान को सीखने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन इक्तिसाब एक क्या है? एक फितरी अमल है। इक्तिसाब हम कैसे कर लेंगे? बच्चा पैदा होते ही, पैदाइश के बाद से ही ये अमल शुरू हो जाता है और बच्चा जैसे जैसे घर में ज़बान को सुनता है, बोली को सुनता है, आस पड़ोस से सुनता है, वैसे ही बोलने लगता है। अब इस तरह उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र में क्या करता है? अपनी मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है, अपनी मादरी ज़बान सीख लेता है। अब मादरी ज़बान कोई माँ बाप उसको सिखाते नहीं है, बल्कि खुद अपने से बच्चा सीख लेता है। तो फ़र्क यही हुआ कि आमोजिश के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत, तब कुछ हम हासिल कर पाएंगे। लेकिन इक्तिसाब कैसे होता है? एक फितरी अमल है, खुद ब खुद हो जाता है, देखते देखते और लोगों के साथ, लोगों के दरमियान रहने के से सीख लेता है बच्चा। ज़्यादातर बच्चे स्कूल आने से कबल 1 से ज़्यादा ज़बानें सीखने लगते हैं और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। क्या है भाई? जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो तकरीबन कितने अल्फाज जानता है? 5000 अल्फाज बच्चा जानता है। ठीक है, और बच्चे स्कूल आने से कबल 1 से ज़्यादा ज़बानें भी सीखने लगते हैं। अब देखें आगे। मादरी ज़बान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राबता से हासिल किया जाता है, जबकि दीगर ज़बानों को बाकायदगी के साथ रस्मी तौर पर सीखा जाता है। ठीक है, एक होता है रस्मी तरीका और एक होता है गैर रस्मी तरीका। तो गैर रस्मी तरीका हम आस पड़ोस घर बार को देखकर हम सीख लेते हैं, लेकिन रस्मी तरीका के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल में जाकर सीखना पड़ता है। तो रस्मी तरीका क्या हो गया? हमें स्कूल जाकर सीखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन गैर रस्मी तरीका से हम अपने आप उसको सीख लेते हैं, माहौलियात से राब्ता करके, लोगों के दरमियान रहकर हम क्या करते हैं? हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो मादरी ज़बान गैर रस्मी और फितरी तरीका है। क्या है? गैर रस्मी और फितरी तरीका। और जो ज़बान स्कूल में जाकर हम सीखते हैं, जो चीज़ स्कूल में सीखते हैं, वो क्या हो जाएगा? रस्मी तरीका। और मादरी ज़बान गैर रस्मी और फितरी तरीका। चलिए, आप दोस्तों तक भी शेयर करते रहें, अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर दें ताकि भला हो जाए। चलें, और ज़्यादा इंशाल्लाह अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह लाइव क्लास भी लिया जाएगा आपकी सहूलत के लिए। चलें देखते हैं। जैसे हिंदुस्तानी तनाजुर में अंग्रेज़ी ज़बान का सीखना, इस अमल में बाकायदगी पाई जाती है
اور طالب علم شعوری طور پر قواعد کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے، لیکن مادری زبان باقاعدگی سے نہیں سیکھی جاتی۔ بالکل ہندوستانی تناظر کو آپ ذہن میں رکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں کہ ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے اس میں کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں بہت سارے قواعد کو جاننا پڑتا ہے، اصول کو جاننا پڑتا ہے، پھر اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ہم انگلش بولنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن مادری زبان بولنے کے لیے باقاعدگی ہمیں اس کو سیکھنا نہیں پڑتا ہے، لیکن انگریزی جاننے کے لیے ہم کو باقاعدگی سے اس کی کلاس بھی کرنا پڑتا ہے، اور شعوری طور پر اصول اور قواعد کو بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، دنیا کا ہر عام بچہ کیا ہے؟ دنیا کا ہر عام بچہ عموماً 4 سال کی عمر تک اپنے آس پاس بولی جانے والی زبانیں سیکھ لیتا ہے، اور 4 یا 5 سال کی عمر میں دیگر زبانوں کا بھی سیکھنے لگتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دنیا کا ہر عام بچہ عموماً عام طور پر کیا کرتا ہے، 4 سال کی عمر تک اپنے آس پاس کی بولی جانے والی زبانیں کیا کرتا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے، اور 4 یا 5 سال کی عمر میں دیگر زبانوں کا بھی استعمال سیکھنے لگتا ہے۔ یعنی جب کس وجہ سے سیکھتا ہے، تو یہ مادری زبان کی بدولت ہی بچہ دوسری زبان بھی سیکھنے لگتا ہے۔